Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next topic of your chapter 3, the money and credit. Students, in the previous video, I explained you that what is formal sector credit in India, in which I explained you that Reserve Bank plays very important role in the formal sectors. फॉर्मल सेक्टर्स में हमारे पास मेनली क्या आता है? फॉर्मल सेक्टर्स में मेनली ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ऑब्जर्व्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वी कैन से दैट कि इन द फॉर्मल सेक्टर्स वी हैव मोस्टली बैंक्स और cooperative societies. But when we are talking about informal sectors, there are many sources of informal sectors for credit, like friends, relatives, like money lenders, traders, and any other source. Okay, and we also learn that when people move to informal sectors, then they have less income and they are come under debt trappedness. ये मैंने आपको कल बताया था, this could lead to increased debt trappedness when we are taking credit from the informal sectors. Okay, so now the topic is formal and informal credit. Who gets what? फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह के क्रेडिट्स हैं हमारे पास. हु गेट्स व्हाट, कौन क्या ले रहा है, किसको कितना फ़ायदा हो रहा है, या फिर इसमें हम मेनली ये भी पढ़ेंगे कि वी हैव that people are taking credit from which source. Maximum people are taking credit from which sources, either from the formal sector or from the informal sector. Okay, so first to read this we have to read this first. Here we have 4 pie charts, and these pie charts shows the different type of people. We have 4 categories of people in our society. One is poor, second households with few assets, जो poor से थोड़े upgraded है, ठीक है, उनके पास कुछ assets हैं. वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स, जो ठीक हैं, अच्छे हैं, वेल मीडियम में भी आ जाते हैं, ठीक है, एंड रिच हाउसहोल्ड्स. दीज 4 कैटेगरीज हाउसहोल्ड्स वी हैव इन आवर सोसाइटी. नाउ वी विल सी दैट दीज 4 कैटेगरीज हु टेक द क्रेडिट फ्रॉम विच सोर्स. कौन सा सोर्स ऑफ कैटेगरी कहाँ से क्रेडिट ले रहा है, ठीक है. हियर दिस शोज द formal informal sectors, and this shows the formal sector. This purple one is shows the informal sector, and this pink one is shows the formal sector. Okay, so let's see. When we are talking about poor households, जब हम poor households की बात करते हैं, तो in poor households 85% people are here. Those are taking loan from 15% from informal sector. मीन्स ज़्यादातर गरीब लोग 85% लोग ऐसे हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं, एंड देयर आर ओनली 15% पुअर हाउसहोल्ड्स दोज गोज टू फॉर्मल सेक्टर फॉर टेकिंग क्रेडिट. नाउ कम ऑन द हाउसहोल्ड्स विद फ्यू एसेट्स. अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 50-50% है कि कुछ लोग फॉर्मल में चले जाते हैं और 50% लोग कहाँ जाते हैं, इनफॉर्मल में जाते हैं. ऑलमोस्ट नियर अबाउट है. वैसे यहाँ पर भी जो इनफॉर्मल का परसेंटेज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फॉर्मल सेक्टर, ठीक है. यहाँ 53% है, यहाँ 47% है, बट द गैप इज़ नॉट मच एज कम्पेयर टू पुअर हाउसहोल्ड्स. वो गैप ज़्यादा नहीं है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है. नाउ लेट अस ऑन द वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स. अगर वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम पीपल जो हैं दे मूव टू द फॉर्मल सेक्टर, 72%, एंड 28% इज हियर दैट गोज टू द इनफॉर्मल सेक्टर्स. यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं. इसका रीज़न बहुत सारे हैं, वी विल डिस्कस इट अगेन later on. Now come on the rich households. When we are talking about the rich households, there is maximum very few people are here. Those are goes to the informal sector. Otherwise maximum people are here, 90% people are here. Those are moves to the
formal sector for taking credit. Now, why it is? Why the rich goes to the formal sector and why the poor goes to the informal sector? इसके बहुत सारे reasons हैं. If I talk to the reasons, अगर मैं reasons की बात करूं, reasons, so अगर मैं reasons की बात करूं कि that why the poor people move to informal sectors of credit, तो here we have many reasons. बहुत सारे रीजंस आते हैं हमारे पास कि वाई द पीपल मूव टू द इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट. वो इनफॉर्मल सेक्टर्स की तरफ क्यों मूव करते हैं? सबसे पहला, पुअर पीपल जो होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम दे आर अनएजुकेटेड और वी कैन से इलिटरेट. ठीक है, इलिटरेट हैं, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मल सेक्टर टू गेट द लोन्स. अब वो अनएजुकेटेड हैं, दे डोंट नो अबाउट द क्राइटेरिया दैट हाउ दे कैन टेक द लोन फ्रॉम द बैंक्स. उनको बैंक का क्राइटेरिया ही नहीं पता. एंड सेकेंडली दे आर ऑल्सो अनेबल टू डू ऑल दैट टाइप ऑफ क्राइटेरिया. वाई? बिकॉज दे आर अनएजुकेटेड और लेस एजुकेटेड. वो यहाँ तो अनएजुकेटेड हैं या फिर लेस एजुकेटेड हैं. ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रीजन. सेकेंडली, they also don't have the capability to do the proper documentation because of illiteracy or because of less educated. They are not able to do the proper documentation. कहाँ साइन करने हैं, क्या रीड करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो पूरी तरह से उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. दे आर अनेबल टू डू द फुल डॉक्यूमेंटेशन. वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते हैं एंड इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी इन द फॉर्मल सेक्टर. If we want to take that loan from the formal sector, we have to do the proper documentation. Okay, so third, they have no collateral. This is also very important. Poor people don't have any type of collateral. उनके पास कोई assets नहीं होता that they can be show to the banks to take the loans. गिरवी जिसे हम कहते हैं, वो रखने के लिए भी उनके पास कोई कोलेट्रल नहीं है. दे डोंट हैव देयर ओन होम, दे डोंट हैव एनी ज्वेलरी, समटाइम दे डोंट हैव द कैटल ऑल्सो. लाइफ स्टॉक भी उनके पास नहीं होता. सो इन द एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, बैंक ऑल्सो नॉट गिव एनी टाइप ऑफ लोन. Okay, third, fourth, lack of availability of banks in rural area. This is also very important part, that in rural areas there is a lack of banks. Banks are not available in the rural areas, so people are not able to move to the urban areas. जो लोग urban areas में move नहीं कर पाते हैं, they easily take the loan from the rural area, from the money lenders, or we can say that from informal sectors. These are the reasons that why people move to the informal sectors of credit. ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन तैयार होता है that why people move to the informal sectors of credit. Reasons are here. Answer is this. Okay, इसमें एक चीज़ और है बच्चे, उनके पास कोलेट्रल नहीं है. ठीक है, उनके पास बैंक्स अवेलेबल नहीं है. ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलेट्रल नहीं है और बैंक्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो एफर्ट्स ही नहीं करते कि वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएं. वो ईजिली बिना कोलेट्रल के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी डिस्टेंस को कवर किए, बिना टाइम कंज्यूम किए, दे कैन ईजिली गॉट द लोन फ्रॉम देयर रिलेटिव्स, फ्रॉम देयर मनी लेंडर्स और फ्रॉम देयर फ्रेंड्स. ओके, एंड दे इवन डोंट हैव सो मच ऑफ कैपेबिलिटी, कि वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है उनमें कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि विच वन इज़ बेटर एंड वाई. ओके, सो दिस इज, लेट्स रीड इट नाउ. अब हम इसको रीड करेंगे. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड पीपल इन अर्बन एरियाज. अब हम पीपल्स की अर्बन एरियाज में डिस्टेंस को पढ़ेंगे. द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स फ्रॉम द पुअर टू रिच एज शोन इन द फिगर. नाउ this is discuss here. 85% poor households got the loan from the informal sectors, and there is 10% those are getting loan from the formal sectors. ठीक है, अब इसमें क्या है, वट डू यू फाइंड, ओनली 10% ऑफ देयर लोन्स आर द फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज. सिर्फ 10% जो हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज की तरफ मूव करते हैं.
अ सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन द रूरल एरियाज, और यही रूरल एरियाज में है। जो अर्बन एरियाज में है यहाँ पर भी पुअर ज़्यादा इनफॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, तो अर्बन में भी पुअर ज़्यादा इनफॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। सेम क्राइटेरिया इज हेयर, ठीक है। अब रिच हाउस होल्ड जो हैं दे आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल लेंडर्स वेयर द पुअर हाउस होल्ड हैव टू पे ए लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर बोरिंग। देखो उल्टा हो रहा है, रिच के पास कैपेबिलिटी है टू पे द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहा है, इसलिए वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, जबकि पुअर जो जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने की, वो जा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ है, इसलिए वो लार्ज अमाउंट पे कर रहा है फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर बोरोइंग, क्रेडिट लेने के लिए। तो यहाँ पर पुअर को लॉस हो रहा है, ठीक है। वट डज ऑल दिस सजेस्ट? अब यहाँ से हमें क्या सजेशंस आती हैं कि हम इस क्राइटेरिया को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। That first, formal sector still meet only about half of the total credit. अभी भी फॉर्मल सेक्टर जो है वो सिर्फ टोटल क्रेडिट का हाफ क्रेडिट ही दे रहा है लोगों को। मतलब ज़्यादातर लोग अभी भी क्रेडिट कहाँ से ले रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स एंड आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल, और रिमेनिंग कहाँ से हो रही है? इनफॉर्मल सेक्टर से कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। नाउ फॉर दिस, अब इसको कम करने के लिए कि लोग इनफॉर्मल की तरफ ना जाएं, मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डू लिटल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स, ठीक है। दस, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। बैंक्स को और कोऑपरेटिव्स को एफर्ट्स करने चाहिए कि वो अपने क्रेडिट सोर्सेज को रूरल एरियाज में इंक्रीज करें, so that the dependency on informal sources of credit reduces, ताकि वो जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। अब ये एफर्ट करने के लिए उन्हें क्या करना है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वट दे हैव टू डन फॉर दिस। सेकेंडली, फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू बी एक्सपेंड। इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर में लोन्स को एक्सपेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, कि हर छोटे छोटे काम के लिए हम लोन देने के लिए अवेलेबल हों। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरी वन रिसीव दीज लोन्स, और ये भी है कि हर कोई उस बेनिफिट को ले सके। ऐसा नहीं है ओनली फ्यू पीपल केम टू नो अबाउट ऑल दीज रिसोर्सेज एंड दे ओनली गॉट द बेनिफिट्स एंड द अदर्स आर सेम, वो सेम क्राइटेरिया ही यूज़ कर रहे हैं, अभी भी इनफॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। At present, it is the richer households who receive formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. It is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans. ये बहुत ज़रूरी है कि पुअर्स भी चीपर लोन से बेनिफिटेड हों। लोन देने का बेनिफिट ही बच्चे पुअर सोसाइटी को है। If we are not able to to give loans to the poor society, then this is not beneficial, because poor strata is very important, is very there is a instant need to be developed them so that the country can be developed. Okay, तो यहाँ पर what have to do? The banks must have to change their criteria. बैंक्स को अपने क्राइटेरियाज में चेंजेस लाने चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन को इजी करना चाहिए, सोर्सेज ऑफ अपने क्रेडिट के सोर्सेज को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ एफर्ट्स बैंक्स को करने पड़ेंगे। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। ये टॉपिक मैं आपको कल डिस्कस करूंगी। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक वी हैव टू बी कवर वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज में एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आई वांट टू बी डिस्कस दैट क्वेश्चन विद यू। तो मैं पहले वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे in the next video. Here the question is, this is very important question also, that's why I am discussing here.
Why do we need to expand formal sources of credit in India and explain any 4 reasons? हमें फॉर्मल सेक्टर्स एक्सपेंड फॉर्मल सेक्टर और क्रेडिट इन इंडिया क्यों, क्या ज़रूरत है इसको एक्सपेंड करने की? ठीक है, तो हेयर द आंसर इज द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स लोन फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. इसमें हम ये चीज़ें ऐड करते हैं. ठीक है, एक्सपेंड करने की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज ऑफ वन, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर लेस रिस्की एंड दे चार्ज लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट. सबसे पहला क्या है कि वो लेस रिस्की है और वो लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, जिससे कि वो बर्डन नहीं लगता बोरोवर के लिए. सेकेंडली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग, वो उन्हें सुपरवाइज कर रहा है, इसलिए बैंक्स एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस. और यहाँ पर वो मॉनिटर कर रहा है कि बैंक सही क्रेडिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, बैंक ऑल्सो मेंटेन कि वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए ही लोन ना दे रहा हो, वो सभी को क्रेडिट दे रहा हो. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था कि हमें फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज क्यों करना है. एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस. क्यों करना है, इसके लिए 4 रीजंस हमें बताने पड़ेंगे. ठीक है, अब क्यों करना में एक तो रीज़न ये आएगा कि वो लेस रिस्की है और लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है. ठीक है, अब लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की वजह से अब लेस क्योंकि दैट इज़ अफोर्डेबल. और जस्ट ए मिनट, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, हाँ, अब हियर दिस इज एक तो पॉइंट ये आ गया. मैं आपको पॉइंट्स डिस्कस 1-1-2-2 करके डिस्कस कर रही हूँ. एक पॉइंट तो ये आ गया कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर लेस रिस्की एंड दे चार्ज लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो लेस रिस्की है और लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस कर रहा है. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है दैट चीप एंड ईजिली अवेलेबल क्रेडिट कैन इनकरेज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इससे क्या होगा, इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकरेज होएगी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस लोग, क्योंकि जब लोगों को चीप क्रेडिट अवेलेबल होगा तो वो अपना बिजनेस ओपन करने की कोशिश करेंगे. दे ट्राई टू मेक सेल्फ एम्प्लॉयड, वो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करने की कोशिश करेंगे और इससे कंट्री की डेवलपमेंट में और सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प होगी. ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट कैन लीड टू द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हायर इनकम. इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और हायर इनकम ज़्यादा होगी. ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि लोअर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा. चीप रेट जो है, जब हमें चीप क्रेडिट मिलता है तो क्या होता है. सपोज एक पर्सन ने 1000 रुपीज़ क्रेडिट लिया. ठीक है, 10% रेट पर, यानी कि 1000 का अगर मैं 10% निकालूं तो उसे 100 रुपीज़ एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट देने पड़ रहे हैं. यानी कि जब उसको वापस करना है तो 1100 रुपीज़ उसे देने हैं. बट अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने 30% पर लिया तो उसे 1300 रुपीज़ वापस करने पड़ेंगे. तो अगर एक पर्सन 1000 रुपीज़ के इन्वेस्ट करके, सपोज अगर उसने 500 रुपीज़ कमाए, गेन किए, तो यहाँ पर लेस इंटरेस्ट के साथ उसको बेनिफिट हुआ 400 रुपीज़ का. बट यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसे बेनिफिट कितना हुआ, ओनली 200 रुपीज़. तो इससे उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत हेल्पफुल करता है टू lower cost of production and higher income. It can cheap credit जो है led to lower cost of production and higher income. और इससे इनकम क्या होएगी, हाई होगी. बच्चे इस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर लिया है. नाउ दैट इज़ इट फॉर टुडेज एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर. वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.